ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅੰਬ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਆ ਜੀ ਆਪਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਬ ਖਾਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਆ ਜਾਂ ਅੰਬ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਆ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਨਾ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 11 ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਅੰਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਛ ਕੁ ਅਜਿਹੇ ਅੰਬ ਵੀ ਆ ਜੋ ਕਾਫੀ ਟਰੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਅੰਬ ਹੈ ਉਹ ਮੀਆਜ਼ਾਕੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸੂਰਜ ਦਾ ਅੰਡਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਆ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆ। ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੂਟਾ ਹੀ 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ? ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਅੰਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 12 ਮਾਸਗੇ ਆ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ 11 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆ, ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਅੰਬ ਦੇ ਬੂਟੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਟੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਿਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀ ਬਈ ਆਪਾਂ ਕਲਕੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਕੱਤਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੌਦੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਅੰਬ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਅਕਸਰ ਅੰਬ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਛ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੰਗੜਾ, ਦੁਸਹਿਰੀ, ਸ਼ਫੈਦਾ, ਅਮਰਪਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੋਸਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਇਹ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਵਾਇਆ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਮਦਰ ਪਲਾਂਟ ਆ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਖਾ ਲੈਣੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਨਰਸਰੀ ਆ। ਯਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਪੇਦ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਗ੍ਰਾਫਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸਲਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਥਾਈਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਫਲੋਰੀਡਾ, ਜਾਪਾਨ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੋਊਗੀ ਜੀ ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਧਰੋਂ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਚਲਾ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ शबनम नर्सरी तो आयान जी। आप जैसे बोल रहे हो कि आप वाया बांग्लादेश से ये पौधे मंगवा रहे हो, तो किस तरह से आते हैं और क्या क्या वैरायटी इसमें रहती है? हाँ, वैरायटी देखिए सब्जी हमारे पास बांग्लादेश, मलेशिया से, बस बांग्लादेश की नहीं, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्लोरिडा, मेक्सिको, अमेरिका, कई जगह से हम लोग उसका जो ब्रांचेस कलेक्शन करते हैं। जैसे कोई देश के अगर कोई मैंगो फेमस है तो उस मैंगो का हम लोग कलेक्शन के लिए क्या करते हैं, हमारा कई मित्र हमारा विदेश में रहते हैं तो उनसे हम वो डाली का कलेक्शन लेते हैं। तो क्या ऐसा जैसे ब्रांच हमको चाहिए किसी का, तो हमको ऐसे 10 डाली वहाँ से फ्लाइट में भेज दिया। ओके ओके। तो हम वहाँ उसको यहाँ पर लाके ग्राफ्टिंग करते हैं। ठीक। बस ग्राफ्टिंग करने के बाद ऐसा ही नहीं, ग्राफ्टिंग करने के बाद ही बेचते नहीं है, उनको सामने ऐसा मदर प्लांट्स में हम लोग आगे पहले उसका फ्रूट की क्वालिटी चेक करते हैं। अच्छा। फ्रूट की क्वालिटी चेक करके हमको देखे ये सही है, तब उसको जाके आगे पौधा बना रहे। जैसे आप देख रहे हैं लगभग में हमारे प्लांट्स में फ्रूट है। तो ये इतनी प्रक्रिया में कितने साल लग जाते हैं? ये अभी टोटल ये जो हमारा प्रयास है लास्ट में 6 साल से सफलता के बाद अभी मैंने एक 12-14 वैरायटी विदेश की वैरायटी मैंने रखा है मेरे पास। ठीक है ओके। तो ये जैसे कि ये एक मैंगो है, ये भी मैंगो ही है? मैंगो है, मैंगो तो इसके जो पत्ते का कलर है ये ऐसा क्यों है? हाँ, ये जो वैरायटी है ये है ब्लैक स्टोन कस्तूरी। ब्लैक मैंगो और भी एक वैरायटी आता है जिसका भी पत्ती काला रहता है मगर उसमें अपने फूल फल आते नहीं है। अच्छा। हमारा इस बार इसमें फल लगा था, मैं आपको फल के आपको दिखाएंगे, फोटो वीडियो दिखाएंगे। उसमें क्या है, फ्लावर जो बारिश काफ़ी हुआ और इस बार जो गोला गिरे है उसके कारण फ्लावर रुके नहीं। इसका जो मैंगो है 1 से 1.5 साल के अंदर इसमें मैंगो आ जाएगी और इसका जो मैंगो है पूरा काला कलर की आएगी। अच्छा। और 1 से 1.5 साल में फल आएगी गारंटी। जैसे और भी ब्लैक मैंगो कोई कोई नर्सरी के पास से बेचता है, उसमें क्या है फल आएगी कम से कम 6 से 7 साल बाद, तो भी गारंटी नहीं आएगी क्या। अच्छा। इसमें 1 से 1.5 साल में हम जो अपने किसी को अगर बेचेंगे तो हम बिल्टी में लिख कर देंगे जो उसमें 1 से 1.5 साल में वो काला वाला आम निकलेगी गारंटी। उसके अंदर से भी काला होता है? नहीं, अंदर से डार्क रेड आएगी, बाहर में काला आएगी। ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो ये
पूरे इंडिया में लग जाता है? लग जाती है, गारंटी लगेगी। अभी ये चल रहा है, हमारा कई क्षेत्र से चल रहा है। ये एक्चुअली वैरायटी जो है ये अपने इंडोनेशिया से आया है, ठीक है जी। वहाँ भी ये डेवलप हुआ, उसके बाद थाईलैंड से डेवलप करके वहाँ से हमने कलेक्शन किया। ये कालाक प्रजाति का आम है और ये क्वालिटी बहुत बढ़िया, 300 से 400 ग्राम इनका वेट आता है। ब्लैकस्टोन कस्तूरी इनका नाम है। ठीक है, जैसे कि मैंगो का ट्री है, ये महंगा होता है थोड़ा, है ना? जी 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 जी। तो अगर किसी को 1-2 चाहिए या इससे ज़्यादा चाहिए, वो आपसे किस तरह से मिल सकते हैं? सर रिक्वेस्ट है, जिसी को 1, 2, 5 पौधा ऐसा चाहिए, 10 पौधा चाहिए, वो हमको व्हाट्सअप करें। उनको हमको फ़ोन करने का जरूरत है, हमारा जो स्क्रीन पर नंबर है उसमें व्हाट्सअप करें। ठीक है जी। उसमें व्हाट्सएप में उनको पूरा के पूरा जानकारी दिया जाएगी। उनको कुरियर के माध्यम से, हमारा डीडीसी कुरियर के कनेक्टेड है हम लोग, डीडीसी कुरियर के माध्यम से उनका घर तक हम पेड़ पहुंचा देंगे। तो और पूरा सेफ पेड़ पहुंचाएंगे, वो जिम्मेदारी हाँ, हमारा है। यही मैं पूछने वाला था कि क्या ये सेफ जाता है पेड़? बिल्कुल, वो सेफ जाने का जिम्मेदारी हमारा है। अच्छा। उनका अगर पेड़ डैमेज होता है तो हम फिर से उनको रिप्लेस देंगे। उसमें कोरियर का खर्चा हम उनको बता देंगे जी इतना खर्चे में उनके पास पहुंचेगी। ओके, ओके। मगर वो व्हाट्सएप पे थ्रू हमको बात करें, उनसे जैसे 2-5 के लिए फोन ना करें। जिसका ऑर्डर बल्क बागवानी करना है, हाँ, खेत में लगवाना है, हाँ, वो हमको फोन कर सकते हैं। ठीक मगर 2-4 पौधा, आपको तो पहले में काफी लोग फोन करते हैं, मगर 2-4 पौधे के लिए सबका फोन अटेंड करना मुश्किल मुश्किल है। है। तो वो व्हाट्सएप करें हमको, उसका रिप्लाई मिलेगी, उसका सब सिस्टम बता दिया जाएगी और उनका पास पौधा सुरक्षित पहुंचने का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा है। ठीक है, इससे आगे का जो देखें, क्योंकि जी, वैरायटी हाँ, काफ़ी हाँ, लंबी हाँ, है और वीडियो भी हमारी लंबी होने वाली है। जी जी। ਲਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ क्योंकि बहुत ज़्यादा ਇੱਥੇ वैरायटी लगी हुई है। सर ये वाला आम कौन सा है? ये वैरायटी है हनी ड्यू। अच्छा, हनी ड्यू है ये सर, पहले विकसित हुए थे मेक्सिको में। अच्छा जी। मेक्सिको से इसको डेवलप किया गया थाईलैंड में। हम्म, हनी ड्यू है वर्ल्ड की, मतलब जो 5 मीठा अगर आम आएगी, दुनिया की 5 मीठा आम आएगी तो उसमें से हनी ड्यू एक है। जैसे नाम ही इसका हनी है। बिल्कुल, एग्जैक्टली शहद की तरह। शहद करके। इसका हुलिया भी थोड़ा आपको चेंज, आपको दूसरा आएगी, देख रहे हैं आप इसका जो हुलिया है। अभी तो मैच्योरिटी हुआ नहीं, अभी 1 महीने पहले उसका 300 से 500 ग्राम के आसपास वेट रहेगी। अच्छा, ये अभी छोटा है ना? छोटा है, बिल्कुल छोटा है अभी तैयार। यार पेड़ भी छोटा है, एक्चुअली हम लोग रखना नहीं चाहिए, हम लोग पौधे के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। हाँ, तो फल के जो मैनेजमेंट सही करना है वो हम लोग कर नहीं पाते। तो ये है अपने हनी ड्यू। इसका जो प्रॉपर मैच्योर फोटो में आपको दिखा देंगे आप। ठीक है। तो सर ये वाली वैरायटी कौन सी है? ये वाला वैरायटी जो है ये है 3 टेस्ट। ये थाईलैंड की वैरायटी है ये। अच्छा। और ये एक इसमें जो टेस्ट है, एक्चुअली ये तो मीठा तो रहता ही है, हाँ, मगर मीठा के साथ एक यूनिक टेस्ट आता है। अच्छा। हाँ, मीठा के साथ इसका जो टेस्ट है, इसका सॉल्टी का एक कॉम्बिनेशन रहता है, जिसके कारण 3 टेस्ट बताया जाता है। एक यूनिक टेस्ट आता है, मीठा है मगर थोड़ा दूसरा मैंगो से डिफरेंट टेस्ट आता है। थाईलैंड का विकसित हुआ ये मैंगो है, 300 से 600 ग्राम तक इसका वेट जाएगी। और इसका भी थोड़ा लंबा टाइप का मैंगो होगा, अंदर की जो छिलका है वो थोड़ा पतली जैसा होगा वो। ठीक है सर, ये वाली कौन सी वैरायटी है? हाँ, ये है सब्जी जो मलेशियन तोतापुरी हमारा इंडिया में भी एक होता है। अच्छा। हाँ, ये होता है मलेशियन तोतापुरी। इसका स्पेशल ये है, इसका कच्चा में खाने के लिए बेस्ट है सर। अच्छा। ये कच्चा में मीठा होता है। ये आम जो है सर अपने पका के लिए इतना बेस्ट नहीं है। अच्छा। इसको कच्चा में अगर टेस्टफुल आम खाना है, थोड़ा मीठा सा आम खाना है, तो ये के लिए वो मलेशियन तोतापुरी बेस्ट है। अभी ये मीठा होगा? अभी ये मीठा होगा। अभी ये मीठा होगा, ठीक। तो इसमें फल दूसरों से मुकाबले ज्यादा है? हाँ हाँ, दूसरे फल सभी में ज्यादा होता सर। अभी वो गोला गिरने से कभी फ्लावर ड्रॉप हो गया है। और ऐसे हम लोग फल की मैनेजमेंट नहीं कर रहा है। तो अभी ये इसमें कितना बड़ा हो जाएगा ये? आपको आएगी 400 से 600 ग्राम के आसपास। ओके। ये है चिंगमाई वैरायटी। चिंगमाई ये मेनली अपने चाइना, कोरिया में पहले विकसित हुए थे। उसके बाद ये थाईलैंड को माध्यम से विशेष तरीके से इनको डेवलप किया गया, जिसमें इनका जो वेट है 1 किलो से 1.5 किलो की वेट आएगी। अच्छा। और काफ़ी मतलब बोला जाता है, मतलब इससे जो कंट्री है एशिया की, जो अपने थाईलैंड, चाइना, इसमें मतलब जितना वैरायटी का मैंगो है उसमें सक्सेस वैरायटी बना जाता है चिंगमाई मैंगो को। साइज भी ये है और इसका क्वालिटी भी पूरा डिफरेंस होता है, पूरा रेड कलर आ जाता है पूरा मैच्योरिटी में। ओके ओके। तो सर ये एक छोटा सा आम है, ये कौन सा आम है? ये जो है सर, ये अमेरिकन रेड पाल्मर, ये अमेरिका में डेवलप है, अमेरिकाई वैरायटी है। हाँ। एक्चुअली इसमें एक स्पेशल पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी जो मियाजाकी मैंगो का तो नाम सुने होगा, जो जापान की ये मतलब जो नीलाम बाजार में 2.5 लाख कीमत हुए थे। अभी माना जाता है अभी मैंगो में सबसे राज कर रहा है वही, टॉप मार्केट में अभी वही है। हाँ हाँ हाँ। तो अभी क्या है सर जी, को मतलब ज्यादातर नर्सरी में ये मियाजाकी के साथ अमेरिकन रेड पाल्मर जो हो 90% मिलता जुलता है। अच्छा जी। तो जो फ्रॉड काम करते हैं, जो मियाजाकी बोल के किसी को बेचना है फ्रॉडिंग में, तो वो नर्सरी वाले ये पौधा बेचते हैं। अच्छा। ठीक है, मतलब 99% नर्सरी से मियाजाकी बोल के जो सस्ता में मियाजाकी बेचते हैं तो यही पौधा बेच रहा है। इसको अमेरिकन रेड पाल्मर बताया जाते हैं। और जो मियाजाकी होता है इससे भी कभी खास होता है, मगर ये अमेरिकन रेड पाल्मर को ही मियाजाकी बोल, क्योंकि ये थोड़ा सस्ती मिलता है, वो थोड़ा महंगी मिलता है। मियाजाकी तो जापान का ही है ना? जापान की है। ठीक है, थोड़ा देखिए। हाँ,
बिल्कुल उसका सेम जो दिखने में कलर, वैसा। हाँ देखने में उनका फ्रूट्स का, उनका पत्ते का भी जो ये है मियाजाकी के साथ 90% मिलता जुलता है। ठीक है, ठीक है जी, तो इससे थोड़ा सावधान रहे किसान लोग। ठीक है जी। तो इसकी कोई और पहचान है, कोई इसके पौध की या? नहीं नहीं नहीं, इतना इनका तो क्या है, मियाजाकी का पत्ती थोड़ा छोटा होता है हिसाब से। अच्छा, ठीक है, फ्रूट्स की साइज में भी थोड़ा अंतर है, मगर किसान को अच्छा से समझा पाएंगे। इसका कलर जो है 99% मिलता जुलता है अपने मियाजाकी से। ठीक है। हाँ, ये है अमेरिकन रेड पाल्मर, अमेरिका से ही इनका डेवलप हुआ। ठीक है जी, ओके जी। ये वाली कौन सी वैरायटी है जी? हाँ, ये वैरायटी वही है जापान की जो मियाजाकी। अच्छा, ये मियाजाकी असली है। हाँ, एक ऑप्शन तमामगो ताइगो, हाँ, जिसको आपनो जापान नीलाम बाजार में एक बार वो 2.5 लाख रुपया एक मैंगो की कीमत हुए थे। मगर ऐसा नहीं है, जो किसान दोस्तों को हमें बताना चाहते हैं जो उन्होंने मैंगो का पौधा लगाया और उनका जो फल निकले उसमें से 2.5 लाख रुपया बेच पाएंगे, ऐसा नहीं है। वैरायटी जरूर यूनिक वैरायटी है, मगर ऐसा सोचना गलत है जो उसका फ्रूट्स का रेट 2.5 लाख आएगी। हाँ, दूसरा फ्रूट से इनका क्वालिटी जो है अच्छा रहता है, मगर इनका मैनेजमेंट जो है सनलाइट के साथ क्वालिटी बनाना पड़ता है। जैसे हमारे देखने पौधा बन रहा है, इसको जो फ्रूट्स का सही कलर, अभी तो हम लोग प्री मानसून में खड़ा है, अभी तक शुरुआत हुआ नहीं इसका टाइमिंग। अगर टाइमिंग में इनका कलर बहुत अट्रैक्टिव कलर आता है, सनलाइट के साथ इनका मैचिंग के साथ कलर आता है, इनका पूरा रेड कलर जो सूरज के अंडा बताया जाता है। हाँ। एग ऑफ सन जापान में बताया जाता है तमामो ताइगो, तो ये वैरायटी वो है। और रेड अमेरिकन रेड पाल्मर के साथ इनका कलर मिलता जुलता है, तो सावधान रहे। जो अमेरिकन रेड पाल्मर खरीद, मतलब यही मियाजाकी बोल के अमेरिकन रेड पाल्मर दे देता है। ठीक है जी। तो वैरायटी काफ़ी यूनिक है, गिफ्टेड वैरायटी है। किसी को जापान सिटी में किसी को गिफ्ट करना है, किसी को मतलब प्रेजेंट करना है, तो उसमें आपको ये मैंगो से कोई प्रेजेंटेशन थाली में इसको दिया जाता है। इसका साइज कितना रहता है? इसका साइज रहेगी आपको प्रॉपर मैच्योरिटी रहेगी। ये तो छोटा पेड़ में मैनेजमेंट कम है, इसमें फल के ऊपर हमारा फोकस नहीं है। हमारा एक फोकस तो हमारा इतना फल के ऊपर नहीं रहता है, मेन फोकस जो रहता है पौधा बनाने का। अपने सामने देख रहे थे पौधा ग्राफ्टिंग हो रहा है। ये सभी इसकी हाँ, ग्राफ्टिंग हो रहा है। नहीं, ऐसा सब जगह कोई अलग 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 है। यहाँ पर कस्तूरी भी रखा है, वो तो हमारा सब टैगिंग करके रखा है। ओके ओके ओके। तो ये बस वैरायटी वही है जो मियाजाकी जापान की वैरायटी है। प्रॉपर अगर मैनेजमेंट हम लोग करते हैं इसको, वो भी बढ़िया कलर, बढ़िया शाइनिंग आएगी। और इसको थोड़ा जो मार्केट में जो दूसरा मैंगो बेचती है, इसके थोड़ा रेट अच्छा पाने का उम्मीद है, क्योंकि इसका मेनली बड़ा मार्केट में जैसे शॉपिंग मॉल हो, प्रेजेंटेशन सिस्टम पे जाते हैं, तब इसका रेट अच्छा है। कितना रेट वैसे रहेगा? रेट मान के देखिए, इसको प्रेजेंट की थाली होता है, जैसे 2 मैंगो का एक थाली मिल गया, वो 5000 का आपको शॉपिंग मॉल पे मिलेगी। अच्छा, एक थाली में 2 मैंगो के 5000 का, ये सिस्टमेटिकली। यानी कि 2 अंब है 5000 ਦੇ 5 स्टार होटल वगैरह ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ जी जी, एग्जैक्टली। सर, ये गोल सा आम कौन सा है? हाँ, ये जो वैरायटी है सर, इसका वैरायटी का नाम है एप्पल मैंगो सर। अच्छा, ठीक है। इसका एप्पल मैंगो इनका मेन और एक नाम है, बोटानिकल नेम जो है R2E2। ये भी एक यूनिक वैरायटी है। ये कहाँ की वैरायटी है? ये वैरायटी ऑस्ट्रेलिया का वैरायटी है सर। अच्छा। ये एकदम पूरा यूनिक आइटम है, ऑस्ट्रेलिया का वैरायटी है। और कलर जो है सर, येलो और रेड की कॉम्बिनेशन आएगी, बड़ी आएगी। 400 ग्राम के आसपास, 400 से 500 ग्राम से साइज आएगी। ठीक है। ये मतलब एक ही फ्रूट्स को हम रख पाया बस आपको मैं दिखाने के लिए। एप्पल मैंगो, मतलब इनका शेप शाइनिंग पूरा एप्पल जैसे आएगी, और ऑस्ट्रेलिया की खास मैंगो से इसको माना जाता है। एप्पल मैंगो भी बताया जाता है, R2E2 भी बताया जाता है। तो ये तो तकरीबन ग्राफ्टेड आइटम ही हो गई है ना जी ज़्यादा? हाँ जी, हाँ, ग्राफ्टेड, सभी ग्राफ्टेड आपको सामने ही देख रहे हैं। नहीं, ग्राफ्टेड नहीं, जैसे कि किसी को तोहफा या गिफ्ट देने के लिए ही है। हाँ, नहीं देखिए सर, ऐसा कोई बात नहीं। पहले क्या होता था, हमारा विदेश की मैंगो हमारा यहाँ पर अलॉट नहीं था, यहाँ पर आता भी नहीं था। अच्छा। तो हमारा देश में जो प्रजाति फेमस है उसको लेके ही हम लोग आगे चलते थे। ये जो वैरायटी हमारा मेनली अभी क्या, हम लोग विदेश की प्रजातियों को इंडिया में डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि बस हमारे पास 3 4 5 वैरायटी फेमस है। तो हम लोग विदेश में एक देश में जो फेमस आइटम है, तो हम उसको एक सट्टा कलेक्शन किया। अगर हम बात करते हैं, जैसे ये है ऑस्ट्रेलिया का, ये ऑस्ट्रेलिया का वैरायटी है सर। वहाँ का टेस्ट और यहाँ का टेस्ट सेम रहता है? देखिए सर जी, मैंगो जो है टेस्ट में तो जरूर ये बात होता है, कई जगह की वातावरण के हिसाब से टेस्ट का अंतर पड़ सकता है, और कई जगह में उससे भी बेहतर टेस्ट हो सकता है। ठीक है। ट्राई तो पहले एक जगह में किए थे, ऑस्ट्रेलिया में हम लोग ट्राई किया नहीं, मगर अंतर जो होगा सब्जी 80-100 होगा। ऐसा नहीं कि आपको 50-100 का अंतर होगा। अगर अंतर भी होगा, हमको जमीन के वातावरण के हिसाब से, अगर ये फल हमारे पास लग जाए तो उसमें 80% मतलब 20% की फर्क हो सकता है, मगर ऐसा नहीं 80% का फर्क आ जाएगी। 80-100 का ऐसा आएगी, 18-20 आएगी, 15-20 नहीं होगा। ये वाला जो लंबा सा मैंगो है, ये क्या है?
ये जी वो बनाना मैंगो जो Banana- केला आम बता केला देते हैं। आम। केला आम बता देते हैं। इसका जो साइज इससे बड़ा होगा। हाँ ये तो देखिए, ये तो देख रहे हैं हम लोग एक्चुअली जो प्लांट्स जो हम पौधा तैयार करते हैं इसमें से हाँ। डाली काटते हैं। फ्रूट्स में तो उतना फोकस देते नहीं हम लोग, फ्रूट्स रखते भी नहीं हाँ, क्वालिटी। हाँ, हाँ। तो वो भी हम लोग रखा है थोड़ा डेमो की तरफ से, मगर अभी ये लगभग 5.5-6 इंच के आसपास से चला जाएगी। अच्छा। ये 6 इंच से 8 इंच का जाता है और अच्छा। 600 ग्राम से 800 ग्राम तक का वेट होता है। और इसका टेस्ट कैसा रहता है? बहुत मीठा होता है। छिलका जो इसका जो अंदर जो इसके गुंदा होता है, जो अपने बीज होता है, वो बहुत पतली आएगी और टेस्ट बहुत यूनिक टेस्ट है। बहुत अच्छी वैरायटी है, थाईलैंड की वैरायटी है। थाईलैंड की थाईलैंड की वैरायटी है और ये प्रॉपर मैच्योर जब होगा प्रॉपर येलो हो जाएगी बनाना मैंगो। ओके ओके ओके। हाँ ये बढ़िया टेस्ट है, मतलब यूनिक क्वालिटी है ये पूरा। ये ऑल इंडिया में लग जाता है। ऑल इंडिया ये वैरायटी ऑल इंडिया सक्सेस है वैरायटी है। ओके, ऑल इंडिया सक्सेस है वैरायटी। ठीक है। तो जो आप प्लांट देते हो, चाहे कुरियर करते हो, वो ये वाला प्लांट ये है। plants, ये है तो ready इतना plants। प्लांट कुरियर में चला जाता हाँ है? जी हाँ जी हाँ जी। कुरियर 400 ज़्यादा, ये तो थोड़ा बड़ा प्लांट्स है। इससे थोड़ा कुरियर में थोड़ा हम 3 फीट 2.5 से 3 फीट का प्लांट्स हम लोग देते हैं। बाकी किसी का बागवानी करना है तो हम लोग बड़ा प्लांट्स का हम लोग कोशिश करते हैं। ये सब जो इतना फॉरेन वैरायटी का अपने मदर प्लांट्स देखा, सभी का यहाँ पर पौधा हम लोग की प्लांटेशन करके रखा है। ग्राफ्टिंग करने के बाद यहाँ पर हम लोग डेवलप करते हैं ये इसको। कितने साल का बूटा है? ये अभी 1 साल का उठा है सर ये। ओके जी, इसमें अगले साल में सभी में ही फ्लावर आएगी, सभी में ही फ्रूट लगेगी लगभग लोगों में। ठीक है जी। मैंगो की सर ये वाली कौन सी क्या क्वालिटी है? ये जो वैरायटी है सब इसको बताए थे ब्रुनाई किंग। अच्छा जी। ब्रुनाई किंग आपने सामने देख रहा है, ये हमारा जो है छोटा एक मतलब 15 पॉलिथीन में इसको रखा है। छोटा बैग तो है। मतलब इसको बस तो हम मदर प्लांट से ये सब हाँ। ये जो फ्रूट्स है 5 किलो तक चल जाता है इसका एक फ्रूट। 5 किलो का 5 एक किलो फ्रूट। तक, 5 आपने किलो क्या देखा है? बिल्कुल नहीं, मैंने बांग्लादेश के मैंने 3.25 किलो का खुद देखा है। वहाँ पर भी प्लांट्स था वो 3 साल 3.5 साल का। अगर हम नॉर्मल की बात करें, नॉर्मल 2 किलो आराम से आप सामने ही देख रहा है इसका। आप हाँ। सामने आप एक बार देखिए एक इसका। बार 1 किलो के आसपास तो इसका हाँ, अभी वेट हो होगा। गया। अभी तो ये छोटा प्लांट दिख रहा है। इसका जो मेन एक चीज आपको दिखाता हूँ, इसका जो पत्ती भी देखिए। हाँ, इसका जो ओरिजिनल होना है, जैसे पत्ती भी कम से कम लगभग 1-1.5 फीट तक हो जाता है। बड़ा इतना बड़ा पत्ती हो जाता है हाँ। जी। ठीक है, ये है ब्रुनाई किंग। ये थाईलैंड की वैरायटी है। इसका जो फ्रूट्स की साइज है बहुत बड़ा होता है इसका। और इसका टेस्ट कैसा है? टेस्ट बिल्कुल अच्छा है। अच्छा। जो हमारा इंडिया में एक मालदा फजली आता है वो भी बड़ा आता है, मगर ये 4-5 किलो अगर प्रॉपर मैच्योरिटी जब 5 साल की हो जाए ना, तब आपका 4 किलो 5 किलो आराम से आपको इसके मिल सकता है। तो इसमें कितने रहेंगे ये फल आपने जब 5 साल की मैच्योरिटी हो जाए, 5 साल के बाद एक प्लांट से हम 1 क्विंटल का आसपास फ्रूट ले सकते हैं। 1 क्विंटल तक? 1 क्विंटल। तो कितने समय में फल? हम ज्यादा फ्रूट्स लेंगे रखेंगे तो उसका फ्रूट हाँ, साइज थोड़ा छोटा होगा, ताकत उसको नहीं मिलेगी। जी हाँ, फ्रूट थोड़ा कम करके रखेंगे तो उसका फ्रूट क्वालिटी बराबर मिलेगी सर। तो इसको जो फल है वो कितने समय में आ जाता है? ये तो देखिए हमारे पास ये जो फल है 1.5-2 साल के प्लांट्स है, छोटा बैग में रखा है। फ्रूट तो सर जी प्लांट्स लगाएंगे तो अगले साल ही अपने उस प्लांट्स पे फ्रूट रहेगी, मगर कोशिश करें जब बागवानी के संपर्क से करें या तो घर पे लगाना भी है, उसका फ्रूट्स की जो ये है वो तोड़ दे पहला 2 साल तक, उसके बाद उसमें 1-2 करके फ्रूट रखे, 5 साल के बाद से उसका मैच्योरिटी अच्छा फ्रूट्स ले ले। ये तो बात सही है सर। एक जैसे ये वाला आम का पौधा है जी, इसके ऊपर फूल लगे हैं और नीचे यहाँ पर आम लगे हैं जी। ये कौन सी नस्ल है? ये वैरायटी है सर जी थाईलैंड की 12 मीठा मैंगो। अच्छा जी। थाईलैंड की एक 12 मैंगो हमारे यहाँ पर, ये इंडिया की भी एक 12 मैंगो पहले भी पुराना था, मगर ये क्या है 12 मीठा मैंगो। मीठा मैंगो मतलब लैंगड़ा की मिठास जहाँ पर 25%, इसका मिठास 27%। ये इतना खास वैरायटी है, स्पेशल कमर्शियल वैरायटी है पूरा। अच्छा जी। जी, तो ये भी इतने 1 साल में फल दे देता है? बिल्कुल बिल्कुल। ये आपने 1.5-2 साल की पौधा है, हाँ। मगर वही 2 साल के बाद इसमें रखना है। हम तो बस डेमो की तरह से रखा है। ठीक है, ठीक है जी। ठीक है। तो जो इसके फल का वेट है वो कितना रहता है? फल का वेट आपको आएगी 400 से 600 ग्राम। अच्छा, काफी बड़ा है फल। 400 से 600 ग्राम आएगी। अगर हम इसको कमर्शियल लगाते हैं, बाग लगाते हैं, तो वहाँ पर ये कामयाब रहेगा? बिल्कुल। मैं तो यही हमारा किसान दोस्त को बताना चाहते हैं, अगर किसी को मैंगो का, फॉरेन मैंगो का कमर्शियल बागवानी करना है तो जरूर इस मैंगो को सिलेक्शन करें जितना भी चाहे तो, क्योंकि ये वैरायटी ऑफ सीजन में देगा, कंटिन्यू तो ऐसा आता रहेगी, मगर कमर्शियल तरह से साल में 2 बार उसका उत्पादन ले। 2 बार उत्पादन लेने से मगर हमको टारगेट रखना है ऑफ सीजन पे ये उत्पादन रहे। प्रूनिंग के माध्यम से 2 बार खुद चूज कर सकते, रख सकते। सीजन के मैंगो के टाइम पे ना ले, उस टाइम पे ले जो उस टाइम दूसरा मैंगो है नहीं है। हमारा भाई बांग्लादेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से इस मैंगो जितना होता है सभी फॉरेन में एक्सपोर्ट होता है। 400 रुपए किलो जा रहा है। किसी किसान को बागवानी करना है, दूसरा जो भी मैंगो जरूर इसको सिलेक्ट करें। मैं मतलब इसका मैं रेफरेंस दूंगा जरूर सर। बिल्कुल जी। ऑफ सीजन में लगेगा? जी, गारंटेड। तो कीमत अपने पे ज्यादा मिलेगी और मिठास भी ऐसा नहीं, ऑप्शन में दूसरा मैंगो भी आता है। इसका स्वीटनेस भी लैंगड़ा से भी बेहतर है। जो जैसे मिठास में कमी, छिलका बिल्कुल पतली आएगी, सेल्फ लाइफ अच्छा है,
अंदर का जो बीज है वो बिल्कुल पतली है, और ऐसा नहीं छिबड़ा भी होगा, और भी 2-3 मैंगो छिबड़ा होता है टाइम मैच्योरिटी टाइम में, अच्छा छिबड़ा भी नहीं होगा। मैंगो पेड़ से हार्वेस्ट कर लिया 25 दिन तक ऐसे रख सकते हैं आप, ठीक है। पूरा कमर्शियल एक्सपोर्ट मार्केट में भी आप बेच सकते हैं इसको, इतना ओके, बढ़िया क्वालिटी ओके, है ये।